I welcome you again for today's lecture. As I mentioned earlier, in last week, we have discussed the first group of instruction. That was the data transfer instruction or data movement instruction. And we have discussed all the details. We have considered some examples as well, and we had rigorous question answer session as well. Today, we are going to discuss arithmetic group of instructions of 8086 microprocessor. This is again very important group of instructions of 8086 microprocessor. Now, as far as arithmetic group of instructions are concerned, you can see there are, various instructions like addition without carry, addition with carry, subtraction without carry, subtraction with carry, increment, decrement, multiplication, division, and comparison. So these are main arithmetic group of instructions which we are going to discuss today in this session. So let us start with addition instruction, ADD. Now, if you look at this arithmetic group of instruction, you can see that at the end of slide, I have written all flags would be updated. What does it mean? It means that whenever microprocessor is going to execute arithmetic group of instruction, at that time, the flags are going to be updated. Whereas I have not made this kind of statement while discussing data transfer instruction, because I haven't make any statement rather about the flags updation when we were talking about data transfer instruction. The reason was during data transfer instruction, none of the flag is going to be updated. Now, what is this flag? We have already talked about the flags, right? हमने जब हमारा internal architecture हम discuss कर रहे थे, at that time I told you 8086 microprocessor has got 16-bit flag register, right? And out of those 16-bit flag register, 9 flags are status oblique conditional flag, right? And 3 flags are control flag. So what are these 6 conditional or status flag? These conditional or status flags means whenever the data is being processed by processor, microprocessor is going to update the flags, okay? Either in terms of making it, resetting it to 0 or setting it to 1. What does this means? By looking at these flags, you will be able to understand what is happening inside the processor. By looking at the flag, you will be able to understand what is happening inside the processor. Okay, so it means even if you are least bothered about the process data, but if you look at the flags, you will be able to understand what kind of data which has been processed by the processor. This can be estimated, this can be imagined, okay, and this can be understood, okay. Whereas as I mentioned earlier, there are 3 other flags, control flags. Control flags means the microprocessor operation can be controlled. It means we can control microprocessor operation by putting logic 1 or logic 0, okay, at this respective position of 16-bit flag register. So here we are least bothered about control flags. We will be focusing on only conditional or status flag, okay, which was not the case as far as data transfer or data movement instructions are concerned. Okay, so I will tell you how these flags are going to be updated. So let us start with add instruction. Now there are 3 different types of add instruction. You can see the first group, you can see this is the format. What is the format? ADD. ADD is, we can call it as a keyword or mnemonics. Okay, ADD is, we can call it as a mnemonics or keyword. So add followed by register 2 comma register 1, register 2 comma register 1. Now here you need to understand the meaning of this register instruction is written here. You can see what is this add register 2 comma register 1. This means register 2 is going to be added with register 1 and the result is going to be updated in register 2. So why register 2? You can see here. Now the register which is immediately followed by add keyword is going to be your destination register. Add के बाद जो भी register आएगा, that is going to be your destination register. Okay, it means ये जो register आगे comma के आगे का है, उसका content यहाँ पर add होगा और result भी इसी में store होगा. You can see here, register 1 and 2 got added and result is going to be stored in register 2.
एग्जाम्पल आप रेड में मैंने एग्जाम्पल कोड किया है यहाँ पर, आप देखिए ADDAL, BL। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा कि BL का कंटेंट AL में ऐड होगा एंड इट इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन AL ओनली। सो whenever this instruction is executed, only AL is going to be updated. AL means the register which is following this keyword add is going to be updated, whereas BL is not going to be updated. Now second instruction, second example of this group of instruction, you can see add register comma memory, रजिस्टर कॉमा मेमोरी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डेस्टिनेशन आपका अगेन हियर रजिस्टर है, बट सोर्स क्या है हमारा? मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर दोनों रजिस्टर की एडिशन हो रही थी, यहाँ पर एक रजिस्टर और दूसरा मेमोरी लोकेशन। अब इसका एग्जांपल कैसे है आप देखिए, एड AL कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट 1000। द स्क्वायर ब्रैकेट 1000 का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि whenever you have anything, any number in square bracket, it means we are essentially referring memory location. इसका मतलब ये होता है कि 1000 memory location पे जो डेटा होगा that is going to be added with register AL and result would be updated in register AL. Okay? अब ये आगे का इंस्ट्रक्शन देखिए, या अब ये इसका उल्टा कर दिया हमने, add memory comma register 1। इसका मतलब क्या है? हमारा अपडेट कहाँ होगा? मेमोरी लोकेशन पे होगा। रजिस्टर का कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट पे ऐड होगा और यही अपडेट होगा। अब देखिए एग्जांपल, ऐड स्क्वायर ब्रैकेट 1000 कॉमा BL। इसका मतलब ये है कि BL का कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है उसके साथ एडिशन होगा और ये मेमोरी लोकेशन अपडेट हो जाएगा। सो दीज आर 3 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट ग्रुप, ऐड रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी कॉमा डेटा। ओके, सो इसका मतलब क्या है? आपका अभी डेस्टिनेशन रजिस्टर हो सकता या मेमोरी लोकेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर हो सकता, मेमोरी हो सकता। एट द सेम टाइम योर सोर्स कैन बी रजिस्टर एज वेल एज मेमोरी। सो पहले एग्जांपल देखा हमने कि दोनों रजिस्टर है। दूसरा एग्जांपल देखा, एक रजिस्टर है, दूसरा मेमोरी लोकेशन है, मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर है और सोर्स मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन है और सोर्स रजिस्टर है। अब अभी आगे का देखिए आप, ऐड रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी कॉमा डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसेंशियली डेटा जो है, हियर डेटा वाज आइदर इन मेमोरी लोकेशन और it was in register, whereas here in this group of instruction, yes, in this group of instruction immediate data is going to be here. We are not going to store this data in register, but directly the data is given after this register. You can see example, add BL, 05। अब देखिए ये इस दो एग्जाम्पल का डिफरेंस देखिए आप। यहाँ पर क्या किया हमने, add AL, BL, मतलब दोनों रजिस्टर है। यहाँ पर क्या किया, add BL, 05, मतलब डेटा यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन में ही इंक्लूड कर दिया। मतलब क्या होगा, 05 BL के कंटेंट में ऐड होगा एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन BL। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ऐड मेमोरी कॉमा डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा है ये मेमोरी लोकेशन के कंटेंट पे ऐड होगा एंड देन मेमोरी लोकेशन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अपडेटेड। ओके, सो दिस इज सेकंड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐड इंस्ट्रक्शन, इज एसेंशियली destination is always accumulator. Destination is always accumulator. Either it can be 8-bit register AL or it can be 16-bit register. So this can be either AL or AH and this would be always 16-bit means AX. And यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका डेस्टिनेशन 8-bit है तो डेटा 8-bit होगा, डेस्टिनेशन 16-bit है तो आपका डेटा भी 16-bit होगा। अब देखिए add AL, data 8, इसका मतलब क्या होगा, 8-bit डेटा, डेटा 8 का मतलब क्या है, 8-bit डेटा। So 8-bit data is going to be added with AL and AL itself is going to be updated. Similarly, here add AX। अब देखिए AX हमें पता है, AX is always 16-bit register। तो अभी क्या हो रहा है, ये 2345H, this is 16-bit data. Okay, this is 16-bit data, 2345H, S stands for hexadecimal। अभी क्या होगा, 2345H is going to be added with AX and AX is going to be updated. So there are 3 different group of add instructions and let me tell you my friend, all flags are going to be updated. Now update कैसे होंगे उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सिंथेसाइज करके रखा है। अब देखिए ये एग्जांपल आप सीरियसली देखिए, एग्जांपल क्या है, और इसी टाइप में लेट मी टेल यू, you are going to have a similar kind of examples in the examination, not same but similar kind of examination.
Similar kind of example would be there in the examination, internal as well as semester end examination. अब एग्जाम्पल देख क्या है, what will be the content of register BL and CL and all flags, अब हमारे जितने भी 6 कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग है वो सभी का फ्लैग आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ add BL, CL इंस्ट्रक्शन, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोनों रजिस्टर का स्टेटस एंड ऑल फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस क्या होगा. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू आई मीन यू हैव टू वर्कआउट. अब इसको अगर वर्कआउट करना है तो बिफोर एग्जीक्यूशन कुछ डेटा हमें देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एग्जांपल में रखा है हमने, assume that before execution the content of BL is FF, content of CL is 01 and status of flag register is going to be like this: CF0, AF0, ZF1, PF0, OF0 and SF1. तो अगर ये बिफोर एग्जीक्यूशन ये स्टेटस है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा. तो कैसे वर्कआउट करना है पहले तो मैं आपको समझाऊंगा. एड BL, CL का मतलब क्या होता है. अब देखिए एड BL, CL का मतलब क्या होगा. BL is going to be added by CL. BL is going to be added by CL and process data, I mean result is going to be updated in BL. तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये BL जो है ये ही हर बार अपडेट होगा, मतलब CL और BL का एडिशन होगा और BL में वो अपडेट होगा, राइट. अब BL का स्टेटस क्या है, हमने दिया है पहले BL का स्टेट FF, तो FF हमने बाइनरी में लिखा 1 1 1 1 1 1 1 1, हो गया. देन CL is again given 0 1, तो 0 1 को बाइनरी में लिख दिया हमने 0 0 0 0, that is 0 and 1 होगा 0 0 0 1. ओके, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू FF, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 1. अभी क्या करना है आपको, अभी इसका एडिशन करना है. बाइनरी एडिशन जैसे कल मैंने बताया था आपको, बाइनरी एडिशन में 4 बीट ऐड करते हैं. 0 0 इक्वल टू 0, 0 1 इक्वल टू 1, 1 0 इक्वल टू 1 एंड 1 1 इक्वल टू 0 विद कैरी 1. जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया, और आपको ये अगर आपको याद नहीं होगा तो यू हैव टू रेफर योर डिजिट फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, देखिए क्या होगा, ये आखिरी बिट 1 विद 1, दिस वुड बी 0 विद कैरी 1. तो कैरी कहां पर, यहां पर कैरी जनरेट होगी. सो 1 विद 1 0 विद कैरी 1, 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 1 विद 1 0 विद कैरी 1 एंड देन आखिरी बिट भी 1 विद 1 0 विद कैरी 1. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन अराउंड कैरी हमारा जनरेट हुआ. अभी यहाँ देखिए आप, आपका प्रोसेस रिजल्ट क्या है, 0 0 है. हालांकि 0 0 गलत रिजल्ट है, क्योंकि FF में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 0 0 तो आएगा ही नहीं. बट स्टिल I will tell you how it is to be interpreted, right? So अभी बिफोर एग्जीक्यूशन, अभी ये एग्जांपल हमने देखा, बिफोर एग्जीक्यूशन स्टेटस यहाँ पर लिख देना है आपको. BL का स्टेटस जो हमने एग्जांपल में दिया, BL का FF है, CL का 0 1 है, और ये सभी फ्लैग का स्टेटस है जो हमने एग्जांपल में मेंशन किया. आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, आप देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन BL FF था, बिफोर एग्जीक्यूशन FF, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हुआ, इट बिकम 0 0. आफ्टर एग्जीक्यूशन इट बिकम 0 0. तो यू कैन सी आफ्टर एग्जीक्यूशन इट बिकम 0 0. बट CL जो है, CL तो अपडेट होने वाला ही नहीं है. CL is as it is, CL is going to be unmodified, so therefore before execution it was 0 1, after execution also it is 0 1 only. अब फ्लैग्स देखते हैं. सबसे पहले CF देखते हैं, कैरी फ्लैग कब अपडेट होगी, whenever you are processing 8-bit data and if you are having in around carry, if the in around carry is being generated, जैसे कि इस एग्जांपल में जनरेट हुई, तो क्या होगा, कैरी फ्लैग सेट होगा. सेट का मतलब 1 होना, रिसेट का मतलब 0 होना. ओके, अभी पहले क्या स्टेटस है CF का, CF का 0 है, लेकिन क्योंकि इन अराउंड कैरी जनरेट हुई है इसीलिए CF विल बिकम 1. ओके, नाउ सिमिलरली AF. अब AF क्या है, ऑक्सिलरी कैरी. ऑक्सिलरी कैरी कब जनरेट होगी, जब ये थर्ड बीट जो है, ये पहले निबल का आखिरी बीट, दिस इज फर्स्ट निबल, दिस इज सेकंड निबल. एक बीट डेटा को हम 1 बाइट कहते हैं. 1 बाइट में 2 निबल होते हैं, ये लोअर निबल है, दिस इज हायर निबल. तो लोअर निबल का जो आखिरी बीट है, आई मीन थर्ड बीट जो है, ये एडिशन करते हुए अगर कैरी जनरेट होता है तो. लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि ड्यूरिंग वी गॉट कैरी जनरेटेड इन ईच एंड एवरी बीट, राइट. यहाँ पर 1 और 1 0 विद 1 आया, 1 और 1 0 विद 1 आया, 1 और 1 0 विद 1 आया, और 1 और 1 0 विद अगेन 1 आया. इसका मतलब यहाँ पर कैरी जनरेट अगर हुई तो आपका AF will be set. So AF earlier it was 0, we can see it becomes 1. ZF का देखते हैं. ZF कैसा है, ZF is 0 फ्लैग. 0 फ्लैग कब सेट होगा, अगर आपका रिजल्ट 0 होगा तो.
अब देखिए रिजल्ट आपका 0 है, रिजल्ट ये जो डेस्टिनेशन रजिस्टर में क्या गया, 0 गया, इसका मतलब क्या होगा, 0 फ्लैग विल सेट टू 1। तो लेकिन क्या हुआ, इसे पहले से सेट था इसलिए उसमें हमें दिखाई नहीं देगा चेंजेस, बट इट इज गोइंग टू सेट टू 1 irrespective of earlier whether it is set or reset, it is going to set to 1. Then next comes parity flag. parity flag का कैसा है, parity flag कब सेट होगा, अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस आर इवन, if there are even number of ones in result then parity flag will set. अब यहाँ तो 1 बिल्कुल है नहीं, सभी 0 है, तो parity flag सेट होने का कोई सवाल ही नहीं, पहले 0 था वो 0 का 0 आज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब क्या है, जब हम कोई, देखिए जैसे कि हम कोई एक लीटर का कंटेनर है आपके पास, उसमें आप पानी डाल रहे हो, जब ओवरफ्लो कब होगा, जब वो पूरा भर जाएगा, पूरा भरेगा तब वो ओवरफ्लो होगा। जैसे कि हम पानी का वाटर टैंक हम हमारे रूफ पे घर के रूफ पे लगाते, राइट, तो ओवरफ्लो कब होगा, जब वो टंकी पूरी भर जाएगी, राइट। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, आप अगर देखोगे आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, बीएल है, इसकी कैपेसिटी कितनी, 8 बिट की। अब ये रिजल्ट जो है 8 बिट से बड़ा है, देखिए यहाँ पर 8 बिट आया और ये एडिशनल ये डेटा है, इसका मतलब क्या होगा, 8 बिट से जब भी ज्यादा रिजल्ट होगा तब आपका ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। अब देखिए ना, एफएफ में अगर 01 ऐड करेंगे हम, तो क्या रिजल्ट 0 आएगा, नो, इट कैन नॉट बी 0। इसका मतलब क्या है, ये 0 आया, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओवरफ्लो कंडीशन, एंड ओवरफ्लो फ्लैग पहले 0 था, अभी वो सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज साइन फ्लैग। साइन फ्लैग का क्या होगा, आपका अगर प्रोसेस डेटा रिजल्ट आई मीन टू से इफ इट इज नेगेटिव, तो साइन फ्लैग सेट होगा। अभी एफएफ में हम 01 ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एफएफ इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, 01 इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, जब दोनों का एडिशन होगा तो इट विल रिजल्ट इनटू पॉजिटिव नंबर ओनली, इसलिए ये 0 फ्लैग सॉरी साइन फ्लैग सेट नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी रिसेट, सो अर्ली इट वाज 1, it becomes 0. So this is how you have to work out. I'm sure yesterday we have discussed this example. Those who are new today, they can ask me questions on this particular example in the interactive session. Let us go to next instruction. So we have discussed now add instruction. Now next is going to be ADC instruction. आपको मैं बताना चाहूंगा कि there is no much difference between ADC and ADD. Okay, add ADD is without carry, as I mentioned earlier. ADC is with carry. So only difference is all other example will remain same. All other example will remain same. Okay, the difference क्या होगा, एडिशन करते समय कैरी फ्लैग का स्टेटस भी ऐड होते जाएगा. That is the only difference. You can see here. एग्जाम्पल बाकी सेम है, एडीसी के ADD का मैंने क्या किया, खाली ADC रिप्लेस कर दिया. आई हैव रिप्लेस ADD by ADC. ADC मींस ऐड विद कैरी. यू कैन सी ADC रजिस्टर 2 रजिस्टर 1, मतलब क्या है, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 का along with CF. अब देखिए रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 प्लस CF, तो रजिस्टर 1 and रजिस्टर 2 along with CF are going to be added and result is going to be stored in register 2. एग्जाम्पल है ADC BL, CL, सेम एग्जाम्पल, खाली मैंने ADC लिखा, तो मीनिंग क्या होगा, BL का एंड CL का स्टेटस ऐड होगा along with CF flag and it is going to be stored in BL. Similarly register MEM मतलब क्या होगा, ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट CL में ऐड होगा along with carry flag. You can see every time plus CF. Here ये रजिस्टर का कंटेंट मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड होगा along with CF and then memory location is going to be updated. ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरा ग्रुप है, इसमें क्या किया हमने, इमीडिएट डेटा है ADC DL, 07, जैसे पहले का एज इट इज है, ओनली the only difference would be CF is going to be added. आप देखिए फिर से यहाँ पर ये 07 DL के कंटेंट में ऐड होगा along with CF and then data is going to be stored in DL. यहाँ पर मेमोरी लोकेशन होगा एंड देन दिस इज द लास्ट सॉरी ये डबल ये नहीं है, दिस इज ADC ओनली, दिस इज ADC ओनली. ओके, तो क्या है ये ADC AL, डेटा 8, डेटा 8 मींस 8 बिट डेटा, क्या होगा, 8 बिट डेटा AL के साथ ऐड होगा along with carry flag. आप देखिए यहाँ पर result is going to be updated in AL and same thing is true
is going to be true for 16 bit data with 16 bit register. इसका मतलब ये जो 16 bit data है AX में ऐड होगा along with CF flag and result is going to be stored in AX. All flags again, let me tell you my friend, all flags are going to be updated even in case of ADC instruction. अब एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा. अब देखिए इस एग्जांपल में हमने क्या किया, बाकी सबको एज इट इज रखा है. देखिए सेम एग्जांपल है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर BL and CL, BL, CL and all flags after execution of ADC BL, CL instruction. एंड जो प्रिज्यूम हमने किया था BL का FF कंटेंट FF है, CL का 01 है, राइट, एंड ऑल फ्लैग स्टेटस वो हमने एज इट इज रखा. क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कंपैरिजन. अब देखिए अब ये ADC BL, CL का डिफरेंस क्या है. अगर ये खाली ऐड BL, CL रहता तो क्या होता था, यहाँ पर BL CL रिजल्ट विल गोस टू BL. बट यहाँ पर क्योंकि ADC है, BL का CL का एंड CF का ऐड होगा, result is going to be updated in BL. You can see the content of BL is FF, content of CL is 01, देखिए बाइनरी, एंड CF जो है हम उसको ऐड करेंगे. अब यहाँ पर देखिए एडिशन कैसे होगा, 1 with 1 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 with कैरी 1, तो कैरी 1 नेक्स्ट बिट में रहेगी. लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि नीचे और एक है, ये 0 plus 1, 0 plus 1 1, इसलिए हम बाइनरी में क्या करते हैं, अगर 3 1 है, 1 plus 1 plus 1 is always going to be 1 with 0. If it is 1 1 is going to be 0 with 1. This is going to be 1 with 1, not 1 with 0. This is going to be 1 with carry 1. So 1 plus 1 plus 1, 1 with carry 1. And then again 1 plus 1, 0 with carry 1. 1 plus 1, 0 with carry 1. 1 plus 1, 0 with carry. देखो अभी भी यहाँ पर कैरी बिट जनरेट हो रहा, तो AF फ्लैग अभी भी सेट होगा. Then 1 plus 1, 0 with carry 1. 1 plus 1, 0 with carry 1. 1 plus 1, 0 with carry 1. And 1 plus 1, 0 with carry 1. तो यहाँ पर भी AF and CF सेट होगा क्योंकि इंटरराउंड कैरी भी है एंड ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट हो रहा है. अब इसलिए आप देखिए, लेकिन डिफरेंस पहले का और इसमें डिफरेंस क्या है. पहले ये जो एग्जांपल हमने लिया था, एक एग्जांपल में क्या प्रोसेस रिजल्ट हमारा 0 0 था क्योंकि CF हमने दिया नहीं है. अभी यहाँ पर प्रोसेस रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये इसका तो 0 0 रहेगा, ये और ये क्योंकि सेम है, बट उसमें जब 0 1 ऐड करेंगे तो प्रोसेस डेटा होगा 0 0 0 0 0 0 0 1. इसका मतलब का बिफोर एग्जीक्यूशन BL was FF, आफ्टर एग्जीक्यूशन BL going to become 01. CL तो अपडेट होगा ही नहीं, एज इट इज होगा रहेगा. CL 01 पहले भी था, अभी भी है. अब एज फार एज द फ्लैग्स आर कंसर्न, आप देखिए अभी CF देखिए आप, जैसे मैंने बताया कि एड अराउंड कैरी जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी सेट रेस्पेक्टिव ऑफ अर्लियर स्टेटस इज गोइंग टू सेट टू 1. ओके, AF भी जनरेट हो रहा, मैंने बताया आपको इस बीट में पहले निबल के आखिरी बिट में कैरी जनरेट हो रहा है, इसलिए AF इज गोइंग टू सेट 1. अर्लियर AF 0 था, अभी ये AF 1 हो गया. ZF अब देखिए, ZF अभी 0, रिजल्ट जो है आपका नॉन 0 है, रिजल्ट 0 नहीं है, इसलिए 0 फ्लैग सेट नहीं होगा. तो अर्लियर इट वाज 1, नाउ इट बिकम 0. पैरिटी स्टिल वी डोंट हैव इवन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पर एक ही 1 है, तो इट बिकम ऑड रहा तो पैरिटी फ्लैग सेट नहीं होगा, इसलिए पहले 1 था तो इट बिकम 0. ओवरफ्लो, यस, क्योंकि ओवरफ्लो अभी भी जनरेट हुआ है, क्योंकि FF में 01 ऐड करेंगे तो 01 कतई नहीं आएगा, obviously is going to be more than that. Still we in the destination register you could see it is 01. इसका मतलब क्या है, something is wrong, so it means the data is overflow. So this is what we call as overflow condition. So overflow flag is going to set 1. And sign flag, क्योंकि जैसे मैंने फिर से बताता हूँ, पहले भी बताया कि FF plus 01 दोनों पॉजिटिव नंबर है, जब दोनों पॉजिटिव नंबर एक दूसरे में ऐड होंगे there is no question of getting negative result. So इसीलिए SF जो 1 था is going to be 0. So this is another example of ADC BL, CL. Okay. Now let us go to subtraction instruction. अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस क्या है, वहां पर 2 नंबर ऐड हो रहे थे, यहाँ पर 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, ऑल फ्लैग्स विल बी अपडेटेड हियर टू. एग्जांपल भी मैंने लिया है, वो एग्जांपल मिलेंगे. लेकिन आप अगर फॉर्मेट देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम, ओनली ADC और ADD हैज बीन रिप्लेस्ड विद SUB.
It is the only difference. Rest of the things are going to be same. अब देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एसयूबी रजिस्टर 2 कॉमा रजिस्टर 1। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रजिस्टर 1 है, no, let me make some correction here because there is minor correction here. So this is going to be registered 2 and this is going to be registered 1. Okay, and yes, that is the only correction. Okay, so अभी क्या है यहाँ पर, let me tell you. Okay, so you can see here, इसका मतलब क्या है, रजिस्टर एसयूबी रजिस्टर 2 कॉमा रजिस्टर 1। इसका मतलब ये है रजिस्टर 1 का कंटेंट रजिस्टर 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए रजिस्टर 2 माइनस रजिस्टर 1, दिस मेक ह्यूज डिफरेंस, इसलिए मैंने चेंज किया। रजिस्टर 1 का कंटेंट रजिस्टर 2 से सब्ट्रैक्ट होगा एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर इन रजिस्टर 2। यू कैन सी अगेन हियर। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है, एसयूबी रजिस्टर 2 कॉमा मेमोरी। इसका मतलब एसयूबी बीएल 1000H। so 1000H is the memory location। इसका मतलब ये होगा कि ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट बीएल से सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो बीएल में अपडेट होगा। अब देखिए रजिस्टर 2 माइनस मेमोरी एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन रजिस्टर 2। अभी यहाँ पर देखिए एसयूबी मेमोरी कॉमा रजिस्टर 1। इसका मतलब क्या होगा, अब रजिस्टर 1 का कंटेंट मेमोरी से माइनस होगा and that same memory location is going to be updated। ये एग्जांपल है SUB 2000 स्क्वायर ब्रैकेट 2000 कॉमा CL। इसका मतलब क्या हुआ, CL का कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होगा उससे माइनस होगा एंड दिस मेमोरी लोकेशन itself is going to be updated। now this is another group। okay, यहाँ पर जैसे कि जो डेटा हमें सब्ट्रैक्ट करना था, जो सब्ट्रैहेंड जो इसको हम बोलते हैं, दैट वाज इन रजिस्टर और इन मेमोरी लोकेशन। अभी क्या हुआ, ये डेटा एक्चुअल डेटा हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ऐड किया है, जैसे कि एसयूबी रजिस्टर कॉमा डेटा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो डेटा होगा दिस डेटा इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रजिस्टर, डेटा ऑफ रजिस्टर एंड द सेम रजिस्टर इज गोइंग टू बी अपडेटेड। एग्जांपल देखिए एसयूबी CL कॉमा 06H। ये 06H is going to be subtracted from CL and CL itself is going to be updated। यहाँ पर अभी देखिए मैंने एक मेमोरी का थोड़ा अलग एग्जांपल दिया अभी यहाँ पर, SUB MEM कॉमा डेटा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो डेटा है that is going to be subtracted from the content of memory location and same memory location is going to be updated। अब देखिए यहाँ पर SUB स्क्वायर ब्रैकेट BX। अब देखिए इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, मैंने इसको, this is example of direct memory addressing। okay, this is direct memory addressing, this is indirect memory addressing, this is indirect memory addressing। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने क्या किया, मेमोरी एड्रेस जो है डायरेक्टली दिया नहीं है, मैंने इनडायरेक्टली दिया। इनडायरेक्टली दिया मतलब क्या हुआ, जो एड्रेस मैं चाहता हूं दैट इज स्टोर इन रजिस्टर BX, स्टोर इन BX। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कंटेंट सॉरी 05 is going to be subtracted from the memory location whose address is in BX, subtracted from the memory location whose address is in BX and the same memory location is going to be updated। so अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया, वो एड्रेस जिस मेमोरी एड्रेस की बात मैं कर रहा हूं that has exclusively explicitly given in the instruction, whereas here it is not explicitly given, it is stored in register BX। okay, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। देन ये है खाली एक्यूमुलेटर का जो पहले भी दिया था हमने एग्जांपल, SUB AL डेटा 8, SUB AX डेटा 16। डेटा 8 मींस 8 बिट डेटा, डेटा 16 मींस 16 बिट डेटा। तो इसमें क्या होगा, ये 8 बिट डेटा AL से सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन AL and this is I mean the target register is going to be destination register rather going to be 16 bit। तो हमने यहाँ पर डेटा भी 16 बिट का लिया है। 8765H will be subtracted from the content of AX and AX itself is going to be updated and as I mentioned earlier all flags will be updated। अब एग्जांपल लेते हैं, this is the example। अब देखिए सेम एग्जांपल लिया मैंने बट अभी डेटा थोड़ा चेंज किया। अब देखिए what would be the content of register BL CL and flags after execution of SUB BL CL instruction। okay, and we have to assume because we need to presume something, right? so what we have to assume, हमने assume किया है कि बिफोर एग्जीक्यूशन BL का स्टेटस 35H है
एंड CL का 1 to H है एंड फ्लैग जो है उसके ये स्टेटस है CF equal to 1, AF equal to 0, ZF equal to 1, PF equal to 1, OF equal to 0 and SF equal to 1। अब देखते हैं कैसे उसको प्रोसेस करना है। SUB BL, CL का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, SUB BL, CL का मतलब होता है कि CL will be subtracted from BL minus CL एंड जो रिजल्ट होगा वो BL में अपडेट हो जाएगा। अब BL क्या है 35 कैसे लिखते बाइनरी में 0033 sorry 0011 is 3 and 0101 is 5, so this is 35H। 1 to H कैसा लिखते हैं बाइनरी में 1 means 0001 and 2 means 0010, so this is 1 to H। फिर सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी आपको पता होना जरूरी है, राइट। व्हाट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन 0 minus 0 0, 1 minus 0 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, अब क्या रह गया 0 minus 1, okay 0 minus 1 is going to be 1 with barrow 1, 0 minus 1 is going to be 1 with barrow 1, so this you need to understand। So as far as addition is concerned 1 with 1 is going to be 0 with carry 1, here 0 minus 1 is going to be 1 with borrow, sorry 0 with borrow 1, okay, so that you need to understand। So 0 minus 1 is 1 with borrow 1, not 0 with borrow 1, 0 minus 1 is going to be 1 with borrow 1, so ये आप समझ लीजिए, okay। अब देखिए एडिशन में सब्ट्रैक्शन मैंने किया 1 minus 0 1, 0 minus 1 1 with borrow 1, 0 minus 1 1 with borrow 1, अब 1 minus 1 फिर से 0, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, ओके। अभी क्या हुआ, अब हमने देखा कि 35H minus 12H, तो ये सीधा है 3 minus 2 3 होगा, सॉरी 5 minus 2 3 होगा, 3 minus 1 2 होगा। अब देखिए 2 is equal to 0010, 3 is equal to 0033, 0011, so this is what your process data is 23H and binary में उसको हम 23, sorry 23H would be hexadecimal and binary in binary it would be 0010 and 0011। now it is going to be terminated soon and you have to join at the earliest, okay, you are not going to take any break, okay। अब देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या था 35 था, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हुआ, ये BL का स्टेटस 23 हुआ, इसलिए 20 you can see 23। CL is going to be unmodified 1 2 1 2। as far as CF is concerned अभी देखिए यहाँ पर कोई एंड अराउंड कैरी आई नहीं है, so CF is going to be 0, अभी CF पहले 1 था अब 0 हो गया। यहाँ पर ये इस बीट के दौरान कोई ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट नहीं हुआ, ये पहले निबल